بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک کہانی جس کا نام ہے خبیث چڑیل۔ میں جیسے ہی کالج پہنچی تو دیکھا کہ کچھ لڑکیاں اسٹاف روم کے باہر کھڑی تھیں۔ میں ان کے قریب گئی تو پتہ چلا کہ وہ سب کی سب میری ہی کلاس فیلوز تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام انم تھا وہ رو رہی تھی۔ لڑکیوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں یہ سن کر آگے بڑھی اور اسے تسلی دی۔ مجھے اس سے پتہ چلا کہ کال آئی تھی کہ ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ گھر جا رہی ہے۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی کیونکہ میری کلاس شروع ہونے والی تھی۔ کالج میں پورا دن بہت مصروف گزرا اور میں جب گھر واپس آئی تو میرے ذہن سے صبح والا واقعہ نکل چکا تھا۔ 3 دن تک انم کالج نہ آئی، پھر وہ دوبارہ سے کالج آنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے اور پھر سے وہی معمول شروع ہو گیا۔ اور پھر ایک دن جب میں صبح کے وقت کالج پہنچی تو پتہ چلا کہ آج ایک ٹیچر جو کہ ہماری اردو کی کلاس لیتی تھیں وہ چھٹی پر ہیں۔ ہماری کلاس کی لڑکیاں بہت خوش تھیں کیونکہ آج ہمیں ایک پیریڈ فری مل گیا تھا۔ صبح 11 بجے تک ہم کلاس میں مصروف رہے، پھر اردو کی کلاس سٹارٹ ہوئی تھی جو کہ فری تھی۔ کچھ لڑکیاں کینٹین میں چلے گئیں جبکہ کچھ لڑکیاں گروپس بنا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ میں بھی اپنی چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ انم بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے میں نے جنات کا ٹاپک شروع کر دیا۔ سب نے جنات کا نام سن کر ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ پھر انم کہنے لگی، ردا تمہیں پتا ہے میرے ماموں کا انتقال کیسے ہوا؟ میں حیرانگی سے کہنے لگی، کون سے ماموں؟ انم بولی، یار وہ تمہیں یاد ہے جب ایک دن میں کالج آئی تھی اور رو رہی تھی، اچانک مجھے کچھ ماہ پہلے والی بات یاد آئی اور میں نے کہا ہاں یاد آیا، بتاؤ کیسے فوت ہوئے تھے؟ وہ کہنے لگی، آؤ کہیں اور بیٹھیں، یہاں بہت شور ہے۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر کچھ دور جا کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ یوں گویا ہوئی، میرے ماموں بہت اچھے انسان تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، بہت ہی نیک تھے، وہ جاب پر جایا کرتے تھے۔ ہم ایک پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، اس لیے لوگ شام کو ہی گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ میرے ماموں کی جاب ایسی تھی کہ وہ پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ گھر لوٹ رہے تھے۔ ہمارا گھر جدھر ہے وہاں پہنچنے کے لیے سنسان راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ آس پاس صرف درخت اور جھاڑیاں ہیں، غرض کہ وہ جگہ بالکل جنگل جیسی ہے۔ میرے ماموں گھر لوٹ رہے تھے، مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ اس سنسان راستے سے گزر رہے تھے، اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اچانک کچھ دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان سے کچھ فاصلے پر کوئی عورت ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی ہے۔ ماموں کو صرف اس کی پشت ہی نظر آ رہی تھی۔ ماموں حیران ہو گئے کہ اس ویرانے میں اور شام کے وقت اکیلی عورت کیا کر رہی ہے۔ پہلے تو ماموں نے سوچا کہ ایسے ہی گزر جائیں، لیکن انہیں لگا کہ ان کو اس عورت کو یوں اکیلا یہاں پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس عورت نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے جو اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ ماموں نے وہیں سے اس عورت کو آواز دی، سنو، تم اس ویرانے میں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ کہیں جانا ہے تو بتاؤ، میں چھوڑ دوں۔ لیکن اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا، وہ نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ماموں نے اسے پھر آواز دی، رات ہو جائے گی، کچھ دیر میں تم جہاں اس ویران جنگل میں کیا کرو گی؟ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن وہ عورت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ماموں آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑا۔ جیسے ہی اس عورت نے گردن پیچھے موڑی تو ماموں ڈر گئے۔ اس عورت کا چہرہ بہت بھیانک اور خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں، چہرے پر جھریاں تھیں اور منہ پر جگہ جگہ کٹ کے نشان تھے جن پر خون لگا ہوا تھا۔ دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور لمبے تھے۔ ماموں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ خوف سے ان کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ عورت فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی خون خوار آنکھوں سے ماموں کو دیکھتے ہوئے بولی، تو نے مجھے پریشان کر کے اچھا نہیں کیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، تجھے ایسی بھیانک موت دوں گی کہ تو یاد رکھے گا۔ پھر وہ ماموں کی جانب بڑھی۔ ماموں خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ ماموں کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے۔
मामू फौरन पीछे हटे और भागकर थोड़ा दूर पहुंचे और उन्होंने वहीं मगरिब की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वो औरत उनके गिर्द चक्कर लगाती रही, लेकिन कलामे इलाही के बाहिस उन्हें कुछ ना कह सकी। फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। मामू ने नमाज अदा की और कुरानी आयतों का विर्द करते रहे और तेज तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगे। वो जैसे ही घर पहुंचे तो घर वाले उन्हें देखकर परेशान हो गए। उनकी हालत बहुत गैर हो रही थी। नानी ने जल्दी से उन्हें बिठाया और पानी ला कर दिया। जब उन्होंने पानी पिया तो उनके हवास कुछ बहाल हुए और फिर उन्होंने अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में सबको बता दिया। मामू की बात सुनकर नानी परेशान हो गईं और कुरानी आयात पढ़कर उनके ऊपर फूंक मारी। मामू को फिर बिस्तर पर लेट जाने को कहा और सब कमरे से बाहर निकल गए। अगले दिन जब नानी उठी और मामू को देखने उनके कमरे में गईं ताकि उन्हें फजर की नमाज के लिए उठा सकें, नानी ने उन्हें हाथ थाम कर हिलाया, लेकिन मामू का हाथ आग की तरह तप रहा था। नानी ने उनके माथे पर हाथ लगाया तो माथा भी बहुत ज़्यादा गर्म था। नानी ने उन्हें दवा दी और उनको आराम करने को कहकर खुद नमाज अदा करने चली गई। और फिर नमाज के बाद नानी ने मामू पर कुरानी आयात पढ़कर दम किया। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। मामू का बुखार कुछ कम हुआ। नानी ने उन्हें जॉब पर जाने से रोक रखा था। चौथे रोज़ मामू की हालत कदरे बेहतर थी। वो दोबारा से जॉब पर गए, लेकिन अब वो कोशिश करते कि जल्दी घर आ जाएं, मगर फिर भी देर हो जाती थी। कुछ दिन गुजरे कि एक रात मामू सोते हुए चिल्लाने लगे। सब घर वाले दौड़े दौड़े आए। मामू बेड से नीचे गिरे हुए थे। वो चिल्ला रहे थे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो मुझे। नानी ने जल्दी से कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी और मामू की जानिब फूंक मारी। मामू ने चिल्लाना बंद कर दिया। अब वो डर के मारे कांप रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उनके औसान बहाल हुए और फिर से नींद की आगोश में चले गए। अब अक्सर उनके साथ ऐसा होने लगा। वो हर वक्त डरे डरे से रहने लगे। सबसे बात करना छोड़ दी। ऐसे ही बैठे बैठे चिल्लाने लगते। कभी अपना सर दीवार के साथ टकराते। कुछ ही दिनों में वो बहुत ही कमज़ोर हो गए। लोगों ने किसी आमिल को दिखाने का मशवरा दिया। एक आमिल को दिखाया तो उसने बताया कि इस दिन शाम को वीरान जगह से गुजरते हुए जिस औरत से इनका सामना हुआ था वो एक खबीस चुड़ैल है और वो बहुत ही ताकतवर है। वो अपने ख्यालों में गुम थी, लेकिन मामू ने उसको बार बार पुकारा, जिसकी वजह से वो इनके पीछे पड़ गई है। ये उनसे मुदाखलत की वजह से बदला लेना चाहती है और इन्हें मार देना चाहती है। ये सुनकर नानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं। उन्होंने आमिल से मसले का हल दरियाफ्त किया तो आमिल ने मामू पर दम किया और पानी भी दम करके दिया। कुछ दिन मामू की हालत संभली, लेकिन फिर से वही कुछ रात के वक्त सोते हैं में डरना, रोना, शोर करना वगैरह वगैरह शुरू हो चुका था। सब घर वाले बहुत परेशान थे। मामू दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। लगता ही नहीं था कि वो पहले वाले खुश मिजाज मामू हैं। अब वो चिड़चिड़े रहने लगे थे। आंखों के गिर्द गहरे हल्के बन चुके थे। अब वो पहले जैसे नहीं रहे थे। 2-3 और आमलों से भी रब्ता किया, लेकिन मामू का पीछा वो चुड़ैल छोड़ने को तैयार नहीं थी। नानी पूरा दिन मामू के लिए दुआएं करती रहती थीं। मामू की जॉब भी छूट गई थी। मामू हर वक्त अपने कमरे में बंद रहते थे। खाना पीना भी तर्क कर दिया था। नानी ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खिला देती थी। अब बच्चे भी उनके पास जाने से ज़रा घबराते थे, क्योंकि वो मामू की इस हालत को देखकर खौफजदा हो जाते थे। घर में अजीब सी फ़ज़ा फैली हुई थी। फिर एक दिन बाबा जी ने बताया कि मामू को फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास ले जाएं, ये ठीक हो जाएंगे। इन दिनों घर में अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती। कभी कोई बर्तन टूट जाता, कभी घर में किसी और की मौजूदगी का एहसास होता। अब घर में सब डरे डरे से रहने लगे। घर के फर्द ज़रा सी आहट पर चौंक जाते। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। एक दिन मेरी अम्मी ने नानी से सवाल किया, जो कि मामू की ख़राब तबीयत के बायस मेके में थी। अम्मी ने पूछा, अम्मा क्या फिर से वही सब कुछ हो रहा है? मैं इस सवाल पर हैरान रह गई कि ये अम्मी किस चीज़ के बारे में पूछ रही हैं। मैंने नानी से पूछा, नानी अम्मी किस चीज़ के बारे में पूछ रही हैं? क्या दोबारा शुरू हो गया? नानी कहने लगी, रिदा ये जो कुछ हमारे साथ सब बुजुर्गों से हो रहा है, ये आज से नहीं बल्कि ये सब हमारे बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे नाना जी ने अपने दौर में कुछ अमल सीखे। उन्हें आमिल बनने का बहुत शौक था। उसी शौक के बायस वो अमलियात की किताबें खरीद लाते
उन्हें पढ़ते और अमल करने की कोशिश करते। जैसा कि तुम्हें पता है कि आमिल बनना आसान नहीं है, फिर भी वो अपने कमरे में बंद हो जाते और अमल करते रहते। सबके मना करने के बावजूद भी वो ना मानते। इसी तरह कुछ अमल जो कि उन्होंने जिन्नात को काबू करने के लिए किए थे वो गलत हो गए। और एक दिन का जिक्र है कि तुम्हारी नाना जान जिन्नात और चुड़ैलों को काबू करने के लिए एक किताब लेकर आए और सबको दिखाने लगे और कहने लगे, आज मैं चुड़ैल को काबू करके दिखाऊंगा। मैं रात को ये अमल करूंगा, कोई मुझे तंग ना करे। उनको मना भी किया लेकिन वो अपनी जिद पर कायम थे। रात को तकरीबन 12 बजे उन्होंने अमल करना शुरू किया। पहले तो कुछ ना हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कुछ अल्फाज जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में जो मोमबत्तियां जल रही थीं वो अचानक बुझ गईं। एक जोरदार धमाके की आवाज आई, फिर नाना जी की चीख की आवाज आई। सब दौड़ते हुए उनके कमरे में पहुंचे, लेकिन जब अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। लाइट ऑन की तो देखा कि तुम्हारे नाना जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी शहरा कट चुकी थी, हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। और फिर एकदम खामोशी छा गई। फिर इस दिन से हमारे घर में अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। सब डरे डरे रहने लगे। एक रात के वक्त दरवाजे पर इतनी जोरदार दस्तक हुई, लगता था कि अभी दरवाज़ा टूट जाएगा। सब ने ऊंची आवाज़ में आयात का विर्द करना शुरू कर दिया। सब हैरान थे कि इतनी बरसती बारिश में कौन हो सकता है, लेकिन किसी की इतनी जुर्रत ना थी कि बाहर जाकर देखे। पूरी रात दस्तक होती रही, कोई भी सो ना सका। अब हर वक्त सबकी ज़ुबान पर कलामे इलाही जारी रहता था। कुछ अरसे के बाद एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने पानी पर दम किया और बोला कि ये पानी पूरे घर में छिड़क दिया जाए और सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने को कहा। इस तरह हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। अब उन बुजुर्ग का इंतकाल हो चुका है और यहाँ तक बोलकर नानी खामोश हो गई। मैं वहाँ से उठ गई और घर के कामकाज में मसरूफ़ हो गई। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। मामू की अब भी वही हालत थी, उन्हें किसी चीज़ का होश ना था। पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहते, कोई करीब जाता तो मारने को दौड़ते। हर कोई मामू की हालत से मायूस हो चुका था। फिर एक दिन किसी के कहने पर मामू को एक दूर दराज जगह पर एक बुजुर्ग के आस्ताने पर ले गए। आस्ताने पर बहुत रश था। तकरीबन 2 घंटे बाद हमारी बारी आई। मामू को उन बुजुर्ग के सामने बिठा दिया। मामू बुजुर्ग के सामने बैठे थे। नानी ने बुजुर्ग को सारी कहानी सुनाई। फिर बुजुर्ग ने मामू के गिर्द एक हिसार खींचा और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद मामू की आंखें सुर्ख हो गईं और एक अजीबोगरीब आवाज़ में मामू कहने लगे, क्यों बुलाया है मुझे, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ। मामू की आवाज़ बहुत ही भारी थी। बुजुर्ग कहने लगे, क्यों इसके पीछे पड़ी है, छोड़ दे इसको। वो चुड़ैल मामू की आवाज़ में कहने लगी, नहीं छोड़ूंगी। जो हशर इसके नाना का किया था, इसका भी वही हशर करूंगी। उसने मुझे क्यों परेशान किया, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तू भी सुन ले, अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। फिर उसने बुजुर्ग की तरफ इशारा किया और बुजुर्ग को एक झटका लगा और वो गिर पड़े। ये देखकर वो चुड़ैल कह कह लगाने लगी। बुजुर्ग भी खौफसदा हो गए और नानी से कहने लगे, ये काम मेरे बस से बाहर है, आप इनको घर ले जाएं, आगे अल्लाह मालिक है। जाते जाते चुड़ैल कह गई, इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मार डालूंगी इसे। इसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, फिर इसको इसकी सजा मिल जाएगी। और फिर वो चुड़ैल गायब हो गई और मामू बेहोश हो गए। मामू को हम घर ले आए। नानी हर वक्त रोती रहती और बेटे को देख देख कर कुड़ती रहती। रमज़ान का बाबरकत महीना इख्तिताम को था। 2 दिन बाद ईद थी। मामू की अब भी वही हालत थी, वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। ईद आई और गुजर गई, लेकिन हमें किसी चीज़ का होश ना था। अब हम लोग भी अपने घर वापस चले गए। नानी मामू की देखभाल के लिए अकेली रह गईं। अम्मी की मजबूरी थी, ज़्यादा दिन मेके में रुकना मुमकिन ना था। अम्मी मामू की वजह से फ़िक्रमंद थीं, लेकिन जाहिर ना करती। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थीं। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन नानी की कॉल आई। वो कहने लगी, मामू की तबीयत हर रोज़ बिगड़ती जा रही है, अब तो एक निवाला भी नहीं खाते। समझ नहीं आता क्या करूं, जो खाते हैं वो भी क्या कर देते हैं। अम्मी ने नानी को तसल्ली दी। अम्मी हर रोज़ मामू की हालत के बारे में पूछती, लेकिन मामू को ठीक ना होना था, वो ना हुए।
जब मामू के इंतकाल की खबर मुझे मिली तो मैं घर पहुंची। मामू चारपाई पर पड़े थे। उनकी गर्दन पर जख्म के निशान थे। आंखें बाहर को निकली हुई थीं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उनका गला दबाकर उनको मारा गया हो। मैं भी रोने लगी। हर कोई घर में रो रहा था। हमसे एक बहुत अच्छा इंसान बिछड़ चुका था। मामू की तदफीन कर दी गई। नानी को सब तसल्ली दे रहे थे, लेकिन नानी चुप थी। मामू का सोयम हो गया और हम अपने घर वापस आ गए। वो चुड़ैल अपना बदला लेकर जा चुकी थी। ये सुनाते हुए अनम रो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी। अनम फिर बताने लगी, अब वो आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। मामू के इंतकाल के साथ ही सब अजीबोगरीब चीज़ें भी ख़त्म हो गईं। अनम अपने आंसू साफ करने लगी। हमारी अगली क्लास शुरू हो चुकी थी। हम दोनों जल्दी से उठीं और क्लासरूम की जानिब बढ़ गईं। मुझे अब कभी भी वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लिंक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।